Okay. So welcome back to my channel, Anis Sir's Technology. In this lecture, we are discussing the digit extraction continuation with the Java. And this is our lecture 21. Okay. So I was just explaining you that Java is not just a subject of class 9, class 10, first year and second year, we opt as a subject. It's not a subject. It's a complete entire career. It's a complete entire career. The Java developers are in very huge in demand right now. Java developers and the Python developers are in very huge demand right now. Okay, so whatever you are learning, this is called a core Java. Just as a career counseling, I'm just discussing the few things, then I will start my lecture. So core Java basically we are doing. What are the various variations of the Java? This one is a core Java, what we are doing. And after that, second most important concept is advanced Java. Advanced Java. Okay. Now, core Java is called J2SE, Java 2 Standard Edition. Okay. And J2 EE, Java 2 Enterprise Edition. Now, the third is called J2 ME, Java 2 Mobile Edition. Okay, जिसमें हम लोग basically Android पढ़ते हैं. Android is totally based on Java. 90% market has been captured by Android, or we can say that the 95%. Okay, fine. So what is basically how these courses are related? Suppose we want to do the advanced Java. Advanced Java means website development, web-based development, website development. Like Facebook is a website, Google is a website, Flipkart is a website, Amazon is a website, Instagram is a website. The various websites are running across the world. They are developed by the web-based technology. And advanced Java is a basically web-based technology in which we study about servlet, beans, and framework like Spring, Hibernate, etc. Understand? Oh, and after that, it is the Android. You know that mobile-based applications we developed in the Android operating system. But my dear student, a very important thing. Either we do the advanced Java or Android Java. The main prerequisite is that the core Java. If you don't know anything about the core Java, you cannot do anything in the advanced Java and Android development. You cannot do. अगर आप इस कोर्स के लिए जाते भी हैं, तो सबसे पहले आपसे कहा जाएगा, you know the core Java or not? Whatever we are learning, like sequential execution, if conditions, while, for, nested for, and after that we will see the array, string, double dimension array, okay, class-based programming, okay, function overloading, database connectivity. These are comes under the core Java. Understand? So without core Java, we cannot do the advanced Java and Android application. Okay. Okay. And one more thing is that the 90% interviews जो कंपनीज लेती है या कंडक्ट करती है, मैं भी इंटरव्यू पैनल्स में रहता हूं, तो J2SE यानी कि कोर जावा से ही आपके ज्यादातर क्वेश्चन पुट अप होते हैं. नाउ दिस इज योर करियर काउंसलिंग. इट मींस वी नीड टू नो द बेसिक जावा, बेसिक, और वी कैन से द कोर जावा. ओके, बेसिकली इन आवर कोर्स फ्रॉम 9, 10th, 11th, 12th ICSE की अगर हम बात करें तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ द कोर जावा. अगर इतना कोर जावा हम पढ़ के जाते हैं तो फिर हमको कुछ भी प्रॉब्लम आगे नहीं होगी. वी कैन इजिली स्विच टू एनी टेक्नोलॉजी विच कम्स अंडर द जावा. अंडरस्टैंड? अर्लियर इट वाज द प्रोडक्ट ऑफ सन माइक्रोसिस्टम, एज यू नो दैट. मे बी यू डोंट नो, द जावा वाज द प्रोडक्ट ऑफ सन माइक्रोसिस्टम, but nowadays it is the product of Oracle Corporation. Understand? Now Java is a part of Oracle Corporation right now, but earlier it was the product of Sun Microsystem. बाद में Java Oracle Corporation ने इसको अपने साथ मर्ज कर लिया. Understand? And James Gosling is the father of Java.
ओके, जावा का नाम भी कैसे पड़ा ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. देयर आर सो मेनी नेम सजेस्टेड टू द जेम्स गॉसलिंग, सो मेनी नेम सजेस्टेड टू द जेम्स गॉसलिंग. ओके, सिल्क, ओके, एक्सेट्रा, लॉट ऑफ. बट जेम्स गॉसलिंग और इनकी टीम ने ये सोचा कि हमने इतनी अच्छी लैंग्वेज इसलिए डेवलप करी. वी हैव डेवलप्ड दिस वंडरफुल लैंग्वेज बिकॉज वी हैव कंज्यूम्ड लॉट ऑफ कॉफी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट के दौरान. ड्यूरिंग द डेवलपमेंट हमने बहुत अच्छी कॉफी कंज्यूम की, जिसकी वजह से हमारा माइंड शार्प रहा, एक्टिव रहा, और हमने इस लैंग्वेज को डेवलप कर लिया. और सबसे बेस्ट कॉफी जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सप्लाई होती है वो जावा आइलैंड से सप्लाई होती है. तो जावा इज ऑल्सो अ ब्लेंड ऑफ कॉफी. इस तरह से इसका नाम पड़ा. अंडरस्टैंड? पहले जावा का नाम डायरेक्टली जावा नहीं था, पहले ओक था. ओक वो ट्रीज थे जो कि जेम्स गॉसलिंग की लैबोरेटरीज के बाहर थे. तो वो ट्रीज एक्चुअली बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रीज थे उस पीरियड के. तो उन्होंने पहला जो अपना वर्किंग वर्जन था, पहला वर्जन जो था, टेस्टिंग वर्जन, बीटा वर्जन जिनको हम लोग कहते हैं, उनको ओक नाम से कहा. लेकिन ओक के साथ कुछ प्रॉपराइटरी इश्यूज थे. ओक के नाम पर बहुत सी चीजें रजिस्टर्ड थी, तो नाम चेंज करके जावा रखा गया. दिस इज ऑल अबाउट. जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप होना बहुत मुश्किल है. It's a very difficult. You are learning a very, very important Java programming language. It's not just a subject. It's not just a subject of class 9, 10th, 11th and 12th कि हमने इसे complete कर लिया, हमारे marks आ गए, that's it. नहीं. अभी जो हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तो उसमें अराउंड 4 to 5 स्टूडेंट ऐसे रिकॉर्ड हुए हैं जिनके 100 आउट ऑफ 100 से 99 के अराउंड नंबर हैं हाई स्कूल में. इंटरमीडिएट में जो हमारा सबसे हाईएस्ट स्कोर गया है वो 99 गया है. उसके बाद सेकंड हाईएस्ट 99, फ्यू स्टूडेंट्स गॉट द 99, फ्यू स्टूडेंट्स गॉट द 98 और 97. बाकी कुछ लोगों के मार्क्स थोड़े कम रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो कम बहुत नहीं रहे, वो 90s या 85 की रेंज में रहे. ओके, लेकिन उसका रीजन ये भी था कि इस बार क्लास 12 का सिलेबस कंप्लीटली चेंज हो गया था. ये 7 और 8 ईयर में एक बार सिलेबस चेंज होता है. जिस टाइम पर सिलेबस चेंज होता है, थोड़ा चेंज था, उस टाइम पर थोड़ी प्रॉब्लम आती है हर स्टूडेंट को. लेकिन मैंने सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए थे, इसलिए उनको कोई मेजर प्रॉब्लम आई नहीं. नाउ आई थिंक दैट दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशंस ऑफ योर लैंग्वेज, ओके, एंड माय रिजल्ट. नाउ वी कैन स्टार्ट आवर टुडेज सेशन. Okay, precisely in 1 second I will start. Okay, today I want to discuss one more number. Basically we are discussing the numbers in the digit extraction category. So today my number is, if you have any problem, अगर हम आज की प्रॉब्लम आज नहीं सॉल्व करेंगे, कल ले जाएंगे. There are a lot of problems will be collected. This lockdown period and this period is very, very important and precious for studies. मैंने कई नई चीजों में स्पेशलाइजेशन ले लिया इसी दौरान, इसी पीरियड में. बहुत सी चीजें जो मैं नहीं पढ़ पाता था मैंने पढ़ी. ओके, नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द पैलिंड्रोम नंबर. ओके, नाउ व्हाट आर द पैलिंड्रोम नंबर? एनी नंबर which looks the same from left hand side and from right hand side. A number which appears same from left hand side and from right hand side. Okay, एक ऐसा नंबर जो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से एक जैसा लगे. पैलिंड्रोम नंबर्स भी होते हैं माय डियर स्टूडेंट, और पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स भी होती है. When I will start the string chapter, then I will discuss about the palindrome string. Okay, now 1221 363, okay, 7887 11 22 88 99, sorry 999, and we can say that the 66. These are all palindrome number. Okay, do you understand? Can you please respond? This is called the palindrome number. Okay, please reply. Do you understand? Hope you are listening me properly. Okay, yes sir. तो एक ऐसा नंबर जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से देखें, वो एक जैसा लगे, उसको हम लोग पैलिंड्रोम कहते हैं. तो इसके लिए व्हाट आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड?
स्टेप नंबर 1, ये जो स्टेप्स हम लोग डिफाइन कर रहे हैं हमारी लॉजिक है, व्हाट वी हैव टू डू। एक अच्छा प्रोग्रामर, एक अच्छा डेवलपर, एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर कभी भी डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन पे नहीं जाता, ही मस्ट डू सम पेपर वर्क। तो मैं वही आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं कि एक प्रोफेशनल लोगों के काम करने का तरीका क्या होता है। इनपुट अ नंबर, ठीक है। देन माय सेकेंड स्टेप इज आई विल स्टोर that number in another variable for backup purpose. And I think I have already told you about the story of backup. आखिर में at the end अगर आपको ओरिजिनल नंबर की रिक्वायरमेंट है फॉर कंपैरिजन पर्पस, then you take that number in the another variable for a backup. So for backup purpose, step number 3, it's a very important step. We will reverse the number. हम इस नंबर को रिवर्स कर लेंगे. And step number 4, we will compare, actually study is a teamwork. We will compare the reverse number with the original number which is stored as backup. That's it. जब भी देखो, एक चीज और बता दें, हम लोग आज इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, आज थोड़ा सा हम फ्री हैं तो बात करें। तो जब हम इंडस्ट्री में काम करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, सिस्को हो, व्हाटएवर, जो प्रोग्रामर होता है ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर आदमी वहां पर प्रोग्रामर नहीं होता है, जैसे एचआर, मैनेजर, ये सब प्रोग्रामर्स नहीं है। तो जब प्रोग्रामर किसी को अपनी बात समझाता है तो वो एल्गोरिथम के फॉर्म में समझाता है। अब ये जो मैंने स्टेप लिखे हैं, दिस इज कॉल्ड एल्गोरिथम, एल्गो, शॉर्ट में से एल्गो कहते हैं। 1 मिनट प्लीज, एल्गो। अब इसे देख करके कोई लेमैन भी समझ लेगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। इसमें कोई प्रोग्रामेटिक सिंटैक्सेस नहीं है, कहीं पर लूप नहीं चल रहा है। दिस अ काइंड ऑफ एल्गोरिथम जिसकी रिक्वायरमेंट हमको फर्स्ट ईयर में पड़ेगी, ठीक है। फर्स्ट ईयर में हम लोग बेसिकली एल्गोरिथम्स में डील करते हैं। वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम, देन वी हैव टू राइट डाउन द एल्गोरिथम, करस्पॉन्डिंग प्रोग्राम्स की। सो एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, इन अ वेरी सीक्वेंशियल, इन अ वेरी इजी मैनर हम अपनी प्रॉब्लम को डेमोन्स्ट्रेट करें। तो ये हमारी एल्गोरिथम, अंडरस्टैंड? सो जस्ट रीड डाउन द एल्गोरिथम स्टेप। अगर हम इस चीज में सक्सेस हो जाते हैं, जैसे हमारा नंबर है 141, अगर हम इसको किसी तरह से रिवर्स कर लें, तो जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो भी 141 ही आएगा। और रिवर्स वाले नंबर को अगर हम ओरिजिनल से कंपेयर कर लें, इफ बोथ आर सेम, दैट मींस दिस इज पैलिंड्रोम। आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? से यस और नो? अगर हम n की वैल्यू 642 लेते हैं सपोज, और अगर हम इसको रिवर्स करते हैं तो इसका रिवर्स आएगा 246, and now you can see that the reverse of the number is not equal to the original number. That's why this is not palindrome, and this is palindrome. Now we have done our paperwork. Now we can start the program. तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है, हाउ वी विल रिवर्स द नंबर, वो हम लोग देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट start the implementation part. Implementation means programming part. बीच में हम अपने सारे स्टूडेंट्स को, अराउंड 55 स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड राइट नाउ, तो मैं सारे स्टूडेंट्स को कुछ टिप्स देता रहता हूं, आपको भी दे रहा हूं, ठीक है, कि आप प्रैक्टिकल करिए और ड्राई रन करिए। अगर आप अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो डू द प्रैक्टिकल एंड डू द ड्राई रन। क्लियर? ओके, जस्ट 1 मिनट प्लीज। आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ, ठीक है, डिजिट एक्सट्रैक्शन।
or here I want to do today a new number, that is palindrome number. Okay, copying and pasting. Okay, palindrome. I just want to make the comment C. Okay, and for example 121, 3663, 7887 and 1122, these are all palindrome. So I want to remove all this code. Okay, now first of all, scanner OB is equal to new scanner and system.in. I only required the 5% mathematics in my programming, only 5% mathematics. Num, P and REV is used for reversing the number and D is for backup purpose. मैं इन वेरिएबल्स को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको एक वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल प्रिपेयर करनी पड़ती है, वो हम बताएंगे आपको, वो कई सेशन से रुकी हुई है, but I will discuss. Enter number. This is the number to be checked. ob.nextInt. Now immediately after input the number we have to take a backup. अगर हमें बैकअप की रिक्वायरमेंट है तो हम बैकअप इमीडिएटली लेते हैं. Okay, while num is greater than 0, this is one of the very important loop जो कि हम हर प्रोग्राम में कर रहे हैं, क्योंकि digit extraction means this loop we have to use. Now how to extract the last digit? P is equal to num modulus 10. Now the very important step I'm going to write, how to reverse the number. REV is equal to REV multiply 10 plus P and num is equal to num divided by 10. That's it. हो गया प्रोग्राम. पूरा नंबर रिवर्स होके हमारा REV में आ जाएगा. I will explain you, don't worry. अगर REV बराबर है num के, is it right or wrong, ये आपको सोचना है. मैं कुछ इंटेंशनली कुछ गलतियां करता हूं. Palindrome number. Else, I'm just copying this, pasting, not palindrome. Clear? अब देखो, I'm compiling this code. Yes. Someone is saying that, sir, there is a mistake in the if condition. Arnav is saying REV should be equal to D. Correct. मैंने इंटेंशनली ये मिस्टेक करी थी ताकि लोग उसको नोटिस करें. अगर आप REV is equal to num रखते हैं तो क्या होगा? आपका कोई भी नंबर पैलिंड्रोम चेक नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर दिस लूप, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आई एम गोइंग टू राइट. प्रोग्रामर का मतलब होता है जिसको हर स्टेज पर वैल्यूज मालूम हो, उसको ओरली मालूम हो कि इस लूप के बाद क्या वैल्यू होगी. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नम आफ्टर दिस लूप? एनी आइडिया? Someone is writing the answers and someone are thinking. Very good. What will be the value? Exact value. You are trying very good, but what will be the exact value? The exact value will be always 0. Say yes or no? Yes, very good. जब भी ये लूप कंप्लीट होगा, हम इस लूप से बाहर तभी आएंगे जब नम की वैल्यू 0 होगी. जब तक नम की वैल्यू 0 नहीं है, द लूप विल बी कंटिन्यूड. बाहर तभी आएंगे जब नम की वैल्यू 0 होगी. इफ यू से I can print the value of num after loop. मैं जरा सा प्रिंट करा के दिखाना चाहता हूं कि क्या वैल्यू आएगी.
There is no compilation error. Now we can go for execution. अगर compilation नहीं है तो हम execution पे जा सकते हैं. Okay. Now I'm just testing number दे रहे हैं 4334. वैसे तो ये palindrome है, लेकिन हमारा प्रोग्राम देगा not palindrome. And the value of the num after loop is 0. Just 1 second actually. मैं थोड़ा सा ln यूज कर लूं. वैसे कुछ लोग समझ गए होंगे, but I want to write ln. Here I'll also want to write ln. Okay. Again I am compiling. And again I am executing. Just 1 second please. Okay. 5445. The value of the num after the loop is 0. And not a palindrome number. But it is a palindrome. ये हमेशा हर नंबर के लिए not palindrome देगा. Okay. Now, what mistake we have done? हमने मिस्टेक ये करी है कि हम REV को num से कंपेयर कर रहे हैं, जबकि num पूरी तरह से completely num has been destroyed. तो instead of writing the num, what we have to write? There is a big question mark. What we have to write? D. Correct. जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो फर्स्ट ईयर में आपसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ये 9th और 10th आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. ये इस तरह से आपका फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाएगा. अब आपको यहां पे लिखना होगा कि क्या स्टेटमेंट है. जैसे अभी आपने गेस कर लिया कि यहां पे डी होगा. अब ये वर्ड के सारे नंबर चेक कर लेगा पैलिंड्रोम. ओके. आप चाहें तो इस स्टेटमेंट को हटा दें, अब इसकी जरूरत नहीं. तो आई जस्ट वांट टू रिमूव दिस स्टेटमेंट. कमेंट कर दिया. Comment means it will not execute. Now, I have given 5665 palindrome. Very important question. सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया है. Okay. Now, just 1 second, please. 456. It's not a palindrome. My program is working for all the numbers. And 121. It's a palindrome. ओके फाइन. नाउ अब हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है, बिकॉज ड्राई रन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी. नाउ बहुत ध्यान से देखिएगा. इसका ड्राई रन बहुत सिंपल है. नम में हमने एक नंबर ले लिया चेकिंग पर्पस के लिए. आई हैव जस्ट टेकन 5464 एंड REV इज इक्वल टू 0. Clear? This is the variable which is used to reverse. Now what about D? D is for backup purpose. So 464 will be stored in D. Understand? Now I'm going to start my actual process. This is my actual process. Num is greater than 0. Yes, num is greater than 0. यहाँ पर एक P भी ले लेते हैं. P को यहाँ ले लेते हैं. num is greater than 0. yes. num मॉडुलस 10. अब हम लोग बेसिक स्टेज पे है नहीं, तो इमीडिएटली num मॉडुलस 10 मींस 464 मॉडुलस 10, यानी p में क्या आ जाएगा 4. ये बात क्लियर है सबको? Yes sir. माधव, दिस इज क्लियर? Yes sir. Mustafa, is it clear? Raghav, is it clear? Whenever we divide any number, always Yes, sir. get the last digit. Okay, 4. अब देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. REV कितना है? 0. 0 into 10. पहले हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई साइन की प्रेफरेंस हाई होती है अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल. तो REV कितना है? 0. 0 into 10. 0 into 10 plus P. What is P? 4. So can you tell me what will be the value of REV? 0 into 10 0. 0 into 10 0. 0 plus 4 is equal to 4. So REV will be, ठीक है भैया. अब num is equal to num by 10. This is a very important line. My number will become 46. Again we will come back to the condition.
46 is greater than 0. 46 is greater than 0 because num is 46 is again greater than 0. 46 मॉडुलस 10. अगर हम 46 को 10 से मॉडुलस करते हैं तो p में लास्ट डिजिट दैट इज 6 आएगी. अब देखो REV कितना है हमारा 4. अब जल्दी से इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. REV इज माई 4. तो REV हमारा 4 है, तो 4 इंटू 10 प्लस P. What is P? P is 6. तो 4 into 10 40. 4 into 10 40. 40 plus 6. 46. थोड़ा थोड़ा नंबर रिवर्स होना स्टार्ट हो गया. Understand? Okay. Now num is equal to num by 10. Num will become 4. Clear? Now my 4 is again greater than 0. जब हम सिंगल डिजिट को 10 से डिवाइड करते हैं, हम 4 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं. 10 zeros are 0 and remainder will be 4. तो P में हमारे पास 4 आ जाएगा. क्लियर? P में हमारे पास 4 आ जाएगा. अब देखो REV कितना है 46. 46 into 10. Just a moment. 46 into 10 plus P. What is P? P is 4. तो 46 into 10. 46 into 10 460. And 460 plus 4. 46 into 10 460. 460 plus 4. 464. This is nothing but the reverse of original number. Clear? So this is the mathematical line used to reverse the number. And what is the logic behind that? I will explain. The mathematical logic is working behind that unit 10, 100, 1000. सबसे पहले हमने 0 से मल्टीप्लाई करा, जो यूनिट था वही आ गया. फिर हमने इसको 110 से मल्टीप्लाई करा, फिर उसके बाद P को ऐड कर लिया. ऐसे नंबर रिवर्स होता जा रहा है. ओके, अब देखो. नाउ आफ्टर दैट द मेन स्टेप इज, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा क्लियर फॉर्म में आए. REV इज इक्वल टू D. तो व्हाट इज REV? 464. And what is D? Is also 464 and both are same. पहले हम इसको n से कंपेयर कर रहे थे. हाँ, एक स्टेप और हमारा आई थिंक रह गया. num is equal to num by 10. So my num will become 0. ये quotient is 0 and 0 is greater than 0. Condition false. After condition false, we can come out from the loop. REV is equal to D. What is REV? 464 is the REV. 464 is the REV. And what is D? D is also 464 as a backup of the original number. And it is palindrome. Is it clear to all of you? Can you please respond? आराम से सोचकर बताइए. If you have any problem anywhere, I will explain again. मैं फिर से समझा देता हूं आपको. सर 46 रिवर्स इज 46. नो, 46 का रिवर्स होगा 64. रिवर्स कर रहे हैं ना हम लोग, तो 64 होगा. 46 का रिवर्स 64 होगा. ओके, रिवर्स का मतलब होता है नंबर को उल्टा कर देना. ओके, नाउ आई थिंक इट्स लेट एंड कुछ स्टार्ट होना जरूरी था, तो मैंने आज एक क्वेश्चन कर लिया. समथिंग इज बेटर देन नथिंग. और इसको तुम जल्दी से
स्ट्रॉन्ग कर लो। सर ऑफ आई विल इनपुट 4, हाँ गुड। जितने भी सिंगल नंबर्स होते हैं, माधव इज आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन, and here I want to write one thing very important. I just want to clear all this drawing. All the single digit number consider as palindrome. जितने भी सिंगल डिजिट नंबर होते हैं लाइक 1 to 9 और इवन 0 to 9 वी शुड से, ऑल आर पैलिंड्रोम। और जितने भी आपके 2 डिजिट्स के नंबर होते हैं, वो जब 2 2 हो, 3 3 हो, तो दे आर ऑल्सो पैलिंड्रोम। Okay, now we can check our program will provide the palindrome for single digit. Okay, 4 palindrome and 5 is also the palindrome. All right, you don't worry. जितने भी प्रोग्राम मैं आपको बनवा रहा हूं, ठीक है, they are completely correct from every point of view. Now the timing, meeting time is, sir, will you make us practice this again as a revision after the coaching is open? Because I'm very scared of the exam. Don't worry, Anindya. When the coaching will open, we will do some revision sort of sessions also. But the most important revision, that these all videos in the lifetime uploaded. जब आप चाहें, जिस वक्त चाहें, आप इन्हें वॉच कर सकते हैं. The YouTube is a permanent storage area where I am uploading all the videos. It's a lifetime. जब आपकी एज 100 years हो जाए या 120 years हो जाए, ठीक है, तब आप मेरी बात याद करिएगा, हो सकता है उस टाइम मैं ना हूं, तो ये सारी वीडियोस आपको तब तक सपोर्ट करेंगी, कभी आप भूल जाएं. इसी तरह से तो मैं आपको ऑफलाइन क्लास में भी समझाऊंगा, लेकिन ऑफलाइन क्लास में भी हम लोग रिवीजन के सेशंस रखेंगे, ठीक है. एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? Anything else you want to ask? Okay. And time to time you just share your coming, जैसे कि अर्नव एंड अदर स्टूडेंट्स आर आल्सो शेयरिंग अवर कोर्स कॉलेज का कोर्स मेरे साथ शेयर करिए. अब हम थोड़ा सा ये वाइल का सेशन हो जाए, फिर उसके बाद हम थ्योरी और आउटपुट्स पे आ रहे हैं. ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. आई एम क्लोजिंग द सेशन राइट नाउ. You just if you are still not subscribed my channel, please subscribe the channel so you will be stay connected with the all upcoming videos. And thanks once again.